जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजन यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरावनचारी जय कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagadguru Srila Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada Jagadguru Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Shri Hari Naam Sankirtan Ki कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय श्री गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये Hare Krishna. So welcoming all the devotees today and seeking your blessing to speak on this most ripened fruit of Vedic literature, Srimad Bhagavatam. So very grateful to the devotees for giving this opportunity. So actually Prabhupada says if there is any devotee in this entire ISKCON, it is only Prabhupada. We are all trying to be devotees, and with this trying to be devotees, trying to speak on this most exalted literature, seek all devotees' blessings. Okay, so today we'll read from Srimad Bhagavatam 10th canto, chapter 22 and shloka number 4. Asa, okay. Actually,
मोबाईल घेतो. So this is that प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मंद भाग्य. So Bhagavatam is so true. Every word Bhagavatam speaks, and today you had a so we are reading from shloka number 4. So you all can repeat. Katyayani Mahamaye Mahayogin Adishwari Nandagopa Sutam Devi Patim Me Kurute Nama Iti Mantram Japantasyataha Pujam Chakru Kumarika. Anybody, Mataji can please, and one Prabhuji. Katyayani Mahamaye Mahayogin Adishwari Nandagopa Sutam Devi Patim Me Kurute Nama Iti Mantram Japantastya Pujam Chakru Kumarika. Thank you, Salish. Katyayani Mahamaye Mahayogin Adishwari Nandagopa Sutam Devi Patim Me Kurute Namaha Iti Mantram Japatasya Pujam Chakru Kumarika. Thank you. So let us read word to word and translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So Katyayani, O goddess Katyayani, Mahamaye, O great potency, Mahayogini, O possessor of great mystic power, Adishwari, O mighty controller, Nanda Gopa Sutam, the son of Maharaj Nanda, Devi, O goddess, Patim, the husband, may, my, Kuru, please make, Te, unto you, Namaha, my obeisances, Iti, with these words, Mantram, the hymn, Japantyah, chanting, Taha, they, Pujam, worship, Chakru, performed, Kumarika, the unmarried girls. Translation: each of the young unmarried girls performed her worship while chanting the following mantra: O goddess Katyayani, O great potency of the Lord, O possessor of great mystic power and mighty controller of all, please make the son of Nanda Maharaj my husband. I offer my obeisances unto you. Purport will read, it's nice, big, but we'll read. We have time. So, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. According to the various acharyas, the goddess Durga mentioned in this verse is not the illusory energy of Krishna called Maya, but rather the internal potency of the Lord known as Yoga Maya. The distinction between the internal and external or illusory potency of the Lord is described in Narada Pancharatra in the conversation between Shruti and Vidya. Janati ekaparakantam saiva durga tad atmika ya parama shaktir mahavishnu swarupini yasya vijnana mantrena paranam paramatmanah mahurtad devasya praptir bhavati nanyata ekayam prema sarvasva स्वभाव गोकुलेश्वरी अनया सुलभो ज्ञेय आदि देवो अखिलेश्वरः
अस्या आवारिक शक्तिर महा माया अखिलेश्वरी यया मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः. The Lord's inferior potency known as Durga is dedicated to his loving service. Being the Lord's potency, this inferior energy is non-different from him. There is another superior potency whose form is on the same spiritual level as that of God himself. Simply by scientifically understanding the supreme potency, one can immediately achieve the supreme soul of all souls, who is the Lord of all lords. There is no other process to achieve him. That supreme potency of the Lord is known as Gokuleshwari, the goddess of Gokula. Her nature is to be completely absorbed in the love of God, and through her one can easily obtain the primal Lord, the Lord of all to be, all that be. This internal potency of the Lord has a covering potency known as Mahamaya, who rules the material world. In fact, she bewilders the entire universe, and thus everyone within the universe falsely identifies himself with this material body. From the above, we can understand that the internal and external or superior and inferior potencies of the Supreme Lord are personified as Yogamaya and Mahamaya, respectively. The name Durga is sometimes used to refer to the internal superior potency as stated in the Pancharatra. In all mantras used to worship Krishna, the presiding deity is known as Durga. Thus, in the transcendental sound vibration glorifying and worshipping the absolute truth, Krishna, the presiding deity of the name of the particular mantra or hymn, is called Durga. The name Durga therefore refers also to that personality who functions as the internal potency of the Lord and who is thus on the platform of Shuddha Sattva, pure transcendental existence. This internal potency is understood to be Krishna's sister, known as Ekanshaha or Subhadra. This is the Durga who was worshipped by the gopis in Vrindavan. Several acharyas have pointed out that ordinary people are sometimes bewildered and think that the names Mahamaya and Durga refer exclusively to the external potency of the Lord. Even if we accept hypothetically that the gopis were worshipping the external Maya, there is no fault on their part, since in their pastimes of loving Krishna, they were acting as ordinary members of society. Srila Prabhupada comments in this regards. The Vaishnavas generally do not worship any demigods. Srila Narottam Das Thakur has strictly forbidden all worship of the demigods for anyone who wants to advance in the pure devotional service. Yet the gopis, who are beyond compare in their affection for Krishna, were seen to worship Durga. The worshippers of demigods also sometimes mention that the gopis worship goddess Durga. But we must understand the purpose of gopis. Generally, people worship the goddess Durga for some material benediction. Here, the gopis pray to the goddess to become wives of Lord Krishna. The purport is that if Krishna is the center of activity, a devotee can adopt any means to achieve that goal. The gopis could adopt any means to satisfy or serve Krishna. That was the super excellent characteristics of the gopis. They worshipped goddess Durga completely for 1 month in order to have Krishna as their husband. Every day they prayed for Krishna, the son of Nanda Maharaj, to become their husband. The conclusion is that a sincere devotee of Krishna will never imagine any material quality to exist in the transcendental gopis, who are the most exalted devotees in the Lord of the Lord. The only motivation in all their activities is simply to love and satisfy Krishna. And if we foolishly consider the activities to be mundane in any way, it will be impossible for us to understand Krishna consciousness. So sorry, this purport is actually written by Prabhupada disciples. Prabhupada wrote, I think, till 9th chapter of 10th canto. And after that, Prabhupada started writing Chaitanya Charitamrita. So that's the reason it is mentioned, Prabhupada mentions here. So after that, Prabhupada disciple took up this work of translating Srimad Bhagavatam. So sorry for that. So Om Agyantimirandasya Jnanan Janashalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So, any guesses why we are discussing about Durga Mata? This topic, Navratri is coming here, 29th Durgas. So many people of us we've been all worshipping Mother Durga, okay? So long time, and after coming to Krishna consciousness, we still continue. So here, after Kartik, there is another month called as Margashish, right? So this sloka which we read just now, Katyayani Mahamaye Mahayogi Nadishwari Nanda Gopa Sutam Devi Pati Me Kurute Nama. So all unmarried girls, youth girls ko aap bol sakte, we can daily pray this. So because we all want a nice suitable husband, right? So who can be better than Krishna? So if you want a wonderful husband, they can every day pray this. So this was carried out by the gopis in Vrindavan when Lord was there 5,000 years back in Margashish. 1 full month they used to go to the Yamuna river, bathe early morning when it is very very cold, and they used to pray to Katyayani Mahamai. And what was their desire? Nanda Gopa Sutam Devi, please make Krishna our husband. Okay, so once Krishna is our husband, then everything, all the problems of life will be solved. And since we are Prakriti, we are all Prakriti, right? So we all should pray. So all unmarried girls can make this as one of their prayers every day. So now coming back, so who is Durga Mata? So Lord Krishna has unlimited energy. Okay, Parasya Shaktir Virvedeva Shruyate. Swabhavika Jnanam Bala Kriyacha. So he has internal potency, external potency. We are also one of his potency called as marginal. We are called Tatastha Shakti. Tata means like on the banks of river. बोलते ना नदी के तट पे. So since we are Tatastha, we have a chance. Like one side is spiritual world and one side is this material world. तो हम बीच में. तो कभी कभी बैलेंस जब चूक जाता है ना, so spiritual world से हम लोग material world में वो तट बहुत छोटा है और हम फिसल जाते हैं. तो instead of falling on the spiritual side, we fall on the तो हमेशा ये चांस रहते हैं गिरने का. तो हम अभी इस बार गिरे किस तरफ? मटेरियल वर्ल्ड में. सो तटस्थ शक्ति. तो इसलिए हमेशा बहुत सावधानी से चलना है. इवन अभी भक्ति के हम मार्ग में है, सो वी हैव टू बी वेरी मोर केयरफुल. वापस गलती नहीं करना है. सो कृष्णा इज शक्तिमान एंड ऑल हर एनर्जीज, कृष्णाज एनर्जीज आर कॉल्ड शक्ति. सो जैसे हम जानते हैं योग माया, स्पिरिचुअल एनर्जी
मटेरियल एनर्जी. सो दुर्गा किस में आती है? मटेरियल एनर्जी. बट देन अगेन प्रभुपाद एक्सप्लेन्स देर इज अनदर दुर्गा विच इज स्पिरिचुअल. तो इन दिस कनेक्शन जब व्हेन कृष्णा वॉज बॉर्न, व्हेन कृष्णा अपीयर्ड ड्यूरिंग जन्माष्टमी, तो हमको पता है जब नंद महाराज कहाँ जाते हैं, गोकुल उनको लेके जाते हैं और वहाँ से एक पुत्री, सो दैट daughter which was born, that girl was none other than Yogamaya. And Kamsa जो थे, he was a worshipper of Kali. Okay, तो all these people who have asuric tendencies, they worship Kali. तो फिर जब वसुदेव लेके आते, he brings back that girl, so देवकी मैया प्रेज कि आपको तो मारने वाला कौन है? एक लड़का है, ये तो दिस इज अ मतलब एक लड़की, ये तो आपको नहीं मारेगी. बट ही सेज नहीं, आई डो नॉट बिलीव, वो इज अ बिग छलिया, वो किसी भी रूप में आके मुझे मार सकता है. सो वो जब लेके व्हेन ही ट्राइज टू किल हर बाय थ्रोइंग हर टू द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स? शी स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड एंड शी टेक्स दैट फॉर्म ऑफ काली एंड शी इन्फॉर्म्स कंसा कि हु इज सपोज टू किल यू हैज ऑलरेडी टेकन बर्थ. तो एंड दिस is not the Mahamaya, this is that spiritual Yogamaya Durga, and she is said to be the sister of Lord. Prabhupada purport में लिखते हैं, if you go to it is 10th chapter, I mean 10th canto 4th chapter 13 श्लोका में आता है. After speaking to Kamsa in this way, the goddess Durga Yogamaya appeared in different places. And फिर प्रभुपाद लिखते हैं, like वाराणसी में she was she appeared as काली, कलकत्ता में काली, फिर मुंबई में मुंबा जिससे नाम आया मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली, अहमदाबाद में भद्र, इस तरह से. सो दिस इज दैट योगमाया दुर्गा. तो द डिफरेंस बिटवीन योगमाया एंड महामाया इज दैट जो इंटरनल पोटेंसी लॉर्ड की, जो लाइक श्रीमती राधा रानी, सीता मैया, लक्ष्मी, इफ यू सीन एनी टेम्पल जहाँ पे ओनली राधा रानी इज देयर, शी इज ऑलवेज विथ कृष्णा या लक्ष्मी नारायण या सीताराम लक्ष्मण हनुमान. सो द डिफरेंस इज दैट योग माया, द इंटरनल पोटेंसी इज ऑलवेज विथ कृष्णा. ओके, लेकिन हमने दुर्गा का टेम्पल दिखा है ना, विच इज शी इज़ अलोन. अभी हमारे यहाँ पे कितने सारे टेम्पल है जिनके कुलदेवी है, शांता दुर्गा, विजय दुर्गा, मालसा. सो देयर शी इज़ अलोन. सो ये जो मटेरियल एनर्जी है, इवन दो शी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट देयर इज ऑलवेज शी इज़ अभिन्न, शी कैन बी इवन स्टेइंग अपार्ट. सो दिस इज अ डिफरेंस. सो योग माया जो स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, शी इज़ ऑलवेज विद द लॉर्ड, शी इज़ नेवर सेपरेटेड. दैट्स द रीजन कृष्णा क्या बोलते हैं, अपरम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम. सो दिस प्रकृति विच इज देयर मटेरियल एनर्जी, इट इज माई एनर्जी ऑल्सो, एंड इट इज सेम टाइम इट इज माई सेपरेटेड एनर्जी. तो मेरे साथ भी है वो, एट द सेम टाइम शी इज सेपरेटेड ऑल्सो. एंड देन ही सेज जीव भूत महाभाव, देन वी आर ऑल्सो द सेम थिंग. जैसे हम लोग तटस्थ शक्ति वी सॉ, सो वी हैव अ चांस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑलवेज. तो दैट्स द रीजन दे आर अंतरंगा शक्ति एंड ये बहिरंगा शक्ति. सो वन ऑफ द एनर्जीज तो हम लोग जानते हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं कि देर आर 3 प्लेसेस, वैकुंठ, ओके, देन महेश धाम, दैट वैकुंठ इज कॉल्ड हरि धाम, देन कम्स महेश धाम, लॉर्ड शिवास, एंड देन दिस प्लेस, दिस एंटायर यूनिवर्स इज कॉल्ड एज देवी धाम. वाई? बिकॉज कौन यहाँ के इंचार्ज है? और वो हमारी एक तरह से माँ भी है, क्योंकि हमको शरीर कैसे मिलता है? ये जो भौतिक शरीर हमको कौन देता है? दुर्गा देवी दे रही, बिकॉज इस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड उनके अंडर है. तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंतीय तासाम ब्रह्म महद योनिर, कृष्णा इम्प्रेग्नेट्स दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो ये मटेरियल वर्ल्ड एक तरह से दुर्गा देवी का गर्भ है. सो how are we born? When our mother father comes together, and then in the womb of the mother the semen is given, and then we get this material body. उसी तरह से हम जीवों को भी एक तरह से ये पूरा जो भौतिक जगत है वो दुर्गा माता का गर्भ है.
and when Krishna impregnates this material world, then we get our body. Those 84 lakh species जो है दुर्गा माता के द्वारा ही हमको मिलता है. तो इसके वजह से हम बहुत सारे नाम है ना, जगदम्बा, मैंने से माता रानी, राइट. उसी तरह से अलग अलग नाम है. सो इन अ वे शी इज़ अवर मदर ऑल्सो. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मदर? माँ का काम क्या है? किससे मिलाना? पिताजी से मिलाना. तो अभी क्या है, जब बच्चा सुनता है, मतलब माँ जो बोलती है सुनता है, तो काम आसान होता है, राइट. लेकिन जब बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या होता है, माँ को थोड़ा कड़क होना पड़ता है. सो एक्चुअली दुर्गा देवी हैज़ गिवन अ थैंकलेस टास्क. तो दुर्ग मतलब क्या है? या दुर्ग मीन्स फोर्ट, जैसे किला. तो जैसे हम जानते पहले क्या होता था ना, जब राजा लोग अपने दुश्मन से बचने के लिए बड़ा किला बनाते थे, ओके. और किले के साइड में मतलब एक पानी का कुछ रहता था, उसमें वो लोग दे यूज्ड टू इवन क्रोकोडाइल एंड, ताकि मतलब किले में आने से पहले ये सब मगरमच्छ वगैरह ऐसे खतरनाक जानवर रखते थे. सो अगर दुश्मन आना भी चाहे तो वहाँ पे पहले उनसे सामना करो. एंड आफ्टर डिफीटिंग इवन इफ यू रीच, देन वो किला इतना बड़ा रहता था कि डिफ़िकल्ट टू ओवरकम. तो उसी तरह से ये पूरा भगवान के क्रिएशन में दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ दुर्ग, अ प्रिजन हाउस, ओके. और प्रिजन में किसको रखते हैं? कैदियों को रखते हैं, राइट. तो हम जो ये भौतिक जगत में इतना खुद को सोच रहे, मैं गोवा में रह रहा हूँ, मेरा 3 बेडरूम है, या मैंने डुप्लेक्स बंगलो बनाया है. सो एक्चुअली जेल में अलग अलग सेल्स रहते ना. जब मिनिस्टर को गिरफ्तार करते तो उनके लिए एक वीआईपी सेल रहता है. जो बहुत ही बड़ा मर्डरर है उसको एक ऐसे जगह में रखते हैं जहाँ पे अंधेरा है. तो अकॉर्डिंग टू द क्राइम्स अलग अलग सेल रहते. तो उसी तरह भौतिक जगत है ना, इट इज़ अ प्रिजन हाउस. अभी हम लोग छोटे लाइक चिंदी चोर है बड़े चोर नहीं है, इसलिए हमको उतना कष्ट नहीं दिया हमको थोड़ा. लेकिन जो बहुत जिन्होंने बहुत पाप किए हैं ना, सो हम लोग देखते हैं ना, ज़रा पीपल जो सड़क में हम लोग देखते हैं, रहने को घर नहीं. इफ़ यू इन द एट नाइट आफ्टर 11-12 अगर आप निकलोगे ना, तो आप देखेंगे स्टेशन रोड के पास, दिस इज़ इन एवरी सिटी. हाँ, इवन अमेरिका में. हम लोगों को पहले मुझे लगता था कि मतलब अमेरिका ये सब, वहाँ पे ना गरीब लोग है ही नहीं. गरीब मतलब ऐसे अपने जो बोलते थे ना बैकवर्ड, हमको बोलते थे ना बैकवर्ड कंट्री. तो लेकिन इफ़ यू गो टू अमेरिका ऑल्सो ना, तो वहाँ पे जब प्रभुपाद भी गए थे ना, वहाँ पे एक जगह था बावरी बोल के. तो प्रभुपाद जहाँ पे रह रहे थे ना, इट वॉज इतना गंदा था. तो मुकुंद गोस्वामी बोलते, वो जब पहली बार प्रभुपाद को मिलने गए ना, उनको लगा प्रभुपाद ऐसे जगह में रह रहे, मतलब उनके अपार्टमेंट में जाने से पहले पूरा गंदगी, इट वॉज सो डर्टी. सो यू आर सेइंग इतने बड़े स्वामी, इतने मतलब आचार्य जैसे, व्हाई इज ही स्टेइंग हियर? तो अमेरिका में भी ऐसे जगह है. तो जितना हमारा एज पर आवर सिंफुल एक्शंस हमको अलग अलग जगह पे मिलता है. तो जैसे बोला ना, इवन जेल में अलग अलग स्थान है. तो पीपल हु हैव बीन वेरी सिंफुल ना, तो ये जो हमको दिखते, वी शुड बी कंपैशनेट. हमको ऐसा नहीं सोचना हाँ इसने बहुत पाप किया इसलिए इसका जीवन ऐसा है. दैट इज़ रियलिटी, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी, क्योंकि हम लोग भी वहीं से गुजर के आए. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का परसों ही कोट पढ़ा था, इफ़ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड डूइंग डिवोशनल सर्विस, डोंट थिंक दैट यू आर बेटर देन दोज पीपल हु आर मटेरियलिस्टिक. डोंट थिंक यू आर बेटर, यू आर फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट. तो हमको कभी कभी लगता है ना, हम लोग भक्ति में आए, अरे ये देखो क्या क्या कर रहा है. हाँ, इट इज़ नॉट दैट वी आर बेटर देन देम, वी आर फॉर्चुनेट देन देम. अगर हमको नहीं मिलता तो हम भी वही रहते. सो व्हेन यू सी समबडी मटेरियलिस्टिक ना, तो हमेशा ये याद रखो, आई एम नॉट बेटर, आई एम जस्ट फॉर्चुनेट. क्योंकि नहीं तो प्राइड आ जाता है, यू नो. हम लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारे अंदर अहंकार, वैसे भी बहुत है अहंकार, उसको और पानी डालते हैं हम लोग सॉरी पानी नहीं, आग और प्रज्वलित होता है इंस्टेड ऑफ कृष्ण भक्ति क्या होता है, ये अहंकार का अग्नि बहुत प्रज्वलित होता है. तो उसी तरह से ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज़ अ प्रिजन हाउस. तो लॉर्ड के जो क्रिएशन में ये, तो हम लोग सोचेंगे कि भगवान के क्रिएशन में प्रिजन हाउस क्यों चाहिए? बिकॉज हम लोग
क्रिमिनल मेंटेलिटी, मतलब पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, उसके वजह से भगवान को ये बनाना पड़ता है। एंड दुर्गा माता इज गिवन अ थैंकलेस टास्क एज शी इज द जेलर। इवन दो वो इस जेल में है लेकिन वो जेलर है। उनके ऊपर नियम और कानून नहीं लगते। लाइक उदाहरण के तौर पे अगर कोई जेलर है, वो जब व्हेन ही एंटर्स द सेंट्रल जेल या किसी जेल में, इज ही अ क्रिमिनल? नहीं। तो वो एंटर क्यों कर रहा है? बाकी सारे कैदियों को देखने के लिए, क्या कर रहे हैं, कौन सुधर रहा है, कौन अभी तक वैसे ही है, तो वो देखने के लिए। वैसे दुर्गा माता यहाँ पे जो आती है, शी इज़ नॉट बाउंड बाय द रूल्स, शी इज़ टू टेक केयर ऑफ अस। हम लोग क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जेल में फैसिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। तो और ये जेल ऐसा है ना, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड, इसमें दुर्गा माता का एक खर्चा बच गया। जैसे हमने बोला था फोर्ट में क्या रहते, बड़े बड़े दीवार रहते ना, लेकिन ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये कहीं पे भी ऐसा दीवार नहीं है, इट इज़ टोटल ओपन। क्यों? क्योंकि कोई भागने का कोशिश नहीं कर रहा है। तो अभी मटेरियल जेल आप जाएंगे तो कैसे रहते हैं, बड़े बड़े दीवार रहते हैं, दोस प्रिजन हाउस। क्यों? क्योंकि कैदी भागने का कोशिश करता है। लेकिन ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे ना कोई भागना नहीं चाहता, सब लोग खुश है। सो दुर्गा माता को टेंशन ही नहीं है, उनको जय विजय की ज़रूरत नहीं, एवरीबडी एकदम खुश है। और वो लोग दुर्गा माता के साथ क्या करते हैं, वो लोग बोलते हमको कोई प्रॉब्लम नहीं इस जेल में, आप खाली फैसिलिटीज़ दो। कामस्ते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो हम वो भी देखेंगे। सो शी इज़ गिवन अ थैंकलेस टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अस एंड रिफॉर्मिंग अस। तो दैट्स द रीज़न वो त्रिशूल लेके हमेशा घूमती है। तो ये लोग तो मतलब जाने का देख ही नहीं रहे, दे आर वेरी हैप्पी। एंड सिंस शी इज़ अ वैष्णवी, उनको पता है दैट वी आर सफरिंग, तो उनको और दुख होता है। मतलब एक तो हमारी माँ है वो, हाँ हाँ, तो माँ जब देखती कि मेरा बेटा मतलब एक तो टोटली फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ कम टू अ मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा है, इतना कष्ट है, बट स्टिल ही इज़ नॉट, मतलब उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि वो कष्ट में है। तो क्या करती, 3 ताप, वो जो त्रिशूल है, तो स्त्री वो 3 ताप हमको देती है। एक है क्या, 3 ताप कौन से हैं हमारे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सो आदि दैविक क्या है, विच कम्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़ लाइक फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ये जो हमको ऊपर से जो आते हैं। तो एक बार ऐसे कहते हैं, जब नेपाल में ना गौ हत्या बहुत, आपको पता है नेपाल में एक बार बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, वेरी बिग इट वॉज, मतलब इतना लार्ज स्केल पे था ना सब। तो देन इट वॉज फाउंड आउट दैट, मतलब उसके पहले ना नेपाल में इतना गौ हत्या हो रहा था ना, इट हैड बिकम द लार्जेस्ट काउ मीट एक्सपोर्टर टू द एंटायर वर्ल्ड। तो सोचिए जब ऐसे प्रमाण पे आप गौ हत्या करेंगे तो ऐसा होना निश्चित है। सो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो बगल में अगर वो ऐसा कुछ प्रकृति का नियम तोड़ रहे हैं तो उसका भुगतान हमको भी करना पड़ेगा। सिंस वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, इसी घर में रह रहे ना, अगर आप इधर बैठे उधर का दीवार टूटा तो ये नीचे गिर जाएगा ना। तो उसी तरह से, सो दैट्स द रीज़न वी शुड एजुकेट पीपल टू स्पिरिचुअल नॉलेज। तो त्रिताप, तो आदि दैविक, ये सब फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये जो ऊपर जो देवी देवताओं के द्वारा आता है। देन आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। आध्यात्मिक इज़ व्हाट, अपने द्वारा जो हमको आता है कष्ट, जो डिप्रेशन में जाना या फिर मतलब जो भी बीमार गिरना, बीमारी भी कितना ये है ना। सो व्हेन यू आर नॉट हेल्दी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आदि भौतिक इस जो हमको दूसरों के द्वारा मिलते हैं, हमारे नेबर्स, हमारे बॉस, जो ट्रैफिक पुलिस, हम लोग जा रहे अचानक बोलते हैं रुक जाओ। हम बोलते हैं अरे इसने क्यों पकड़ा सुबह सुबह, तो एक बार पकड़ा तो कुछ तो लेगा है। वो बोलते हैं ना खानदानी चोर हो, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊँगा। तो इस तरह से भौतिक जगत के द्वारा आदि भौतिक। तो ये 3 ताप क्यों देती है, क्योंकि अभी जितने भी लोग भक्ति में आए हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिज्ञासा है, मतलब उनको जानना था मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, इतने दुख क्यों आते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हैव, बट मोस्ट ऑफ अस वी कम टू लॉ, मतलब भगवान के पास कब आते हैं हम लोग, जब सही में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। जब
तो दैट्स द रीज़न, ये जो प्रॉब्लम्स है इन अ वे इट इज़ अ मोटिवेशन हमको। तो दुर्गा माता हमको क्यों प्रॉब्लम देती है? उनको मज़ा नहीं आता, राइट? उनको बिल्कुल शी डजंट लाइक, बट देन ऑप्शन ही नहीं है। ओके, माँ पहले प्यार से समझाती है ना, होमवर्क करो, फिर और प्यार से समझाती है, सुन ही नहीं रहा है तो फिर दो कान के नीचे देना ही पड़ता है, फिर रो रो के होमवर्क करना पड़ता है। तो उसी तरह से दुर्गा माता ये जो 3 ताप हमको दे रही है, इट इज़ नॉट बिकॉज उनको मज़ा आता है, चलो भगवान ने मुझे इस जगत का स्वामिनी बनाया है, आई एम द इंचार्ज, आई एम द कंट्रोलर, चलो अभी इन लोगों के भी थोड़ा राज करता हूँ। दिस इज़ मटेरियल मेंटेलिटी जो हमारे अंदर, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट, शी इज़ डूइंग इट सो दैट हमारे आंखें खुले एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। सो या दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे हम लोग प्रभुपाद हमको अभी क्या बोल रहे हैं ना, तो एक बार भक्ति में आने के बाद वंस वी कम टू स्पिरिचुअल लाइफ वी देयर इज़ नो नीड टू वर्शिप मदर दुर्गा। अभी बहुत लोगों को लग सकता है अरे क्यों, हम तो निष्काम भक्ति कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार प्रभुपाद का ऐसे ही एक थोड़े भक्त थे, तो वो लोग एक आदमी को प्रचार कर रहे थे, तो वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये सेड अरे शिव जी तो बहुत बड़े वैष्णव है, तो मैं उनका भक्ति करूंगा और वो भी निष्काम, तो क्या प्रॉब्लम है? तो देन दिस सेड कि सिंस वी आर कंडीशन सोल, निष्काम भक्ति लाइक आप शिव जी की भक्ति करोगे नो डाउट, लेकिन बिकॉज वी आर कंडीशन अनलेस वी टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग निष्काम भक्त नहीं बन सकते। तो वो मानने को तैयार नहीं था। और फिर प्रभुपाद वहाँ पे पहुँचे आफ्टर सम टाइम, तो उसने बोला चलो प्रभुपाद इज़ द आचार्य, इनसे ही मैं पूछता हूँ। जो प्रभुपाद को उनका भाव समझा, वाई ही इज़ आस्किंग, तो उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि कोई आदमी शराब की दुकान में क्यों जाता है? तो उसने बोला शराब पीने के लिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा ज़रूरी है क्या शराब पीने के लिए? ही कैन जस्ट गो एज अ विजिट करने के लिए। वो बोला नहीं नहीं नहीं, अगर कोई शराब की दुकान में जा रहा है मतलब डेफिनेटली वो शराब पीने के लिए जाता है। तो देन प्रभुपाद एक्सप्लेन टू हिम द सिमिलर। तो उसी तरह से जैसे आपने खुद बोला, अगर कोई जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो जाके वहाँ पे खाली देख के आए यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ पे लोगों को क्या मज़ा आता है। तो उसी तरह से वंस वी स्टार्ट, जो लोग ऐसा देवी देवताओं के जो आराधना करते हैं, भले ही यू माइट से कि मैं निष्काम भक्ति कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट दैट वे। आप कुछ तो मांगेंगे ही, हेल्थ मांगेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो वंस यू गो टू डेमी गॉड, क्योंकि हम लोग कंडीशनड है एंड सिंस वी आर नॉट स्टिल प्योर, वंस आप जब जाएंगे और भक्ति करेंगे आप कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, तो वो निष्काम भक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होगा अनलेस यू कम टू द स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रभुपाद ने उनको समझाया ऐसा उदाहरण दे के, देन ही अंडरस्टूड। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग भी अभी क्या है, अभी भी हम लोग कृष्णा से भी बहुत कुछ मांगते हैं, राइट? अभी भी हमारा प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। तो अगर हम लोग अपार्ट फ्रॉम कृष्णा और देवी देवताओं का आश्रय लेंगे, देन क्या होगा, इट विल बी डाइल्यूटेड, वो निष्काम भक्ति नहीं होगा। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभा। रीडिंग फ्रॉम 7.16। तो ओ बेस्ट अमॉन्ग द भारतास 4 काइंड्स ऑफ पायस, देयर आर 4 काइंड ऑफ वर्शिपर्स, 4 प्रकार के जो साधक है। तो कौन है? पहला क्या है, वन हु इज इन डिस्ट्रेस। फिर द सेकेंड वन इज हु इज डिजायरिंग अर्थ वेल्थ। फोर्थ जो है इंक्विजिटिव, ओके, सो the distress, the desire for wealth, the inquisitive, and he who is searching for the knowledge of the absolute. And जो fourth है वो जिज्ञासु, तो ज्ञानी जिज्ञासुर, ज्ञान चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभा। एंड देन वो क्या करते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ्यर्थम अहम सच मम प्रिय। So out of that, who is more dear to me? The one who is inquisitive. And अभी देखो यहाँ पे हमको बताते हैं भगवान कि हम लोगों का क्या ये रहता है, कामेस्ते से ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods। तो किसका, जिसका पूरा मन जो है
भौतिक इच्छाओं में है, वही लोग जो है देवी देवताओं का आराधना करते हैं, एंड टू फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड फिर वहाँ जाके जो जो उनको मिलने के लिए जो चाहिए, जैसे अगर आपको कोई एक अच्छी पत्नी चाहिए तो किसका वर्शिप करना चाहिए? उमा देवी का, लाइक पार्वती मैया। इफ़ यू वांट, तो प्रभु लोगों को तो अच्छा भक्त चाहिए, तो वो तो भगवान से ही मांगेंगे। तो इसी तरह से सो डिफरेंट डिफरेंट, तो जिसको हेल्थ चाहिए वो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, तो सूर्य नारायण की, तो इस तरह से। एंड फिर अभी देखो, हाँ, भले ही हम देवी देवताओं के पास जाए मांगने के लिए, अभी भगवान बोलते देखो हमारी जो श्रद्धा है देवी देवताओं में भी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, वी आर वेरी सेल्फिश। तो हम लोग देवी देवताओं का भक्त बोल के नहीं जाते, लाइक भक्ति करने के लिए नहीं जाते, वहाँ पे केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए बहुत टाइम होता है ना, ये मंदिर में बोलते हैं यहाँ पे अगर जाओगे ना, मैंने 10 सोमवार को नारियल चढ़ाया था और मेरा ये पूर्ति हुआ, ऐसा है क्या? तो बोलता है ठीक है, आज से मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। तो ये भक्ति है क्या? भक्ति मतलब क्या? सेल्फलेस। लेकिन हमारा क्या है, जहाँ पे एप्लीकेशन पास होता है उसके पास जाने का। जैसे बोलते ना, उधर वो ऑफिस में क्या करो ना, इसको पकड़ो, ये प्यून को, ये तुम्हारा काम जल्दी कर देगा। तो उस तरह से हम भी देखते कौन सा मंदिर में एप्लीकेशन जल्दी पास होता है। हाँ, भले ही 2 नारियल एक्स्ट्रा चढ़ाने को मिलेगा, चलेगा। सो दैट इज़ नॉट भक्ति, दैट इज़ बेसिकली सेल्फिश। तो एक बार ना प्रभुपाद चल रहे थे और बीच में एक ये था, एक पानी बह रहा था। सो व्हाट प्रभुपाद डिसाइपल डिड, प्रभुपाद का हाथ पकड़ा। प्रभुपाद वॉज ओल्ड मैन ना, तो हाथ पकड़ के उनको क्रॉस करने के लिए मदद किया। तो प्रभुपाद ने हाथ पकड़ी, ही क्रॉस दैट, वो जो बीच में पानी का। और जैसे ही क्रॉस करने के बाद प्रभुपाद ने क्या किया ना, उसको हाथ से ढकल दिया, नीचे फेंक दिया। तो डिसाइपल बोला ये क्या है प्रभुपाद? तो प्रभुपाद, दिस इज कॉल्ड मायावाद। तो प्रभुपाद ऐसे सिखाते थे अपने शिष्यों को, व्हाट इज मायावाद? लाइक आई वॉन्ट हेल्प ऑफ द लॉर्ड टू क्रॉस, मतलब क्रॉस करने के लिए, और एक बार क्रॉस हो गया फिर मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा है, हम जो भक्ति करते हैं ना, एक बार हमारा इच्छा पूर्ति हो गया, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। सो दैट इज़ कॉल्ड मायावाद। तो ये हम जो सब भक्ति कर रहे हैं, इसमें क्या है? सेल्फिश। अगर आप मेरा इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं और कहीं जाऊंगा, इस तरह से। तो दैट्स द रीज़न जो भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भले ही हमको लगे भक्ति, इट इज़ नॉट भक्ति, इट इज़ बेसिकली सेल्फिश। जैसे दुर्योधन हैड नो इंटरेस्ट इन कृष्णा, बट जब उनको पता चला भी युद्ध होने वाला है, हाँ, और जब भगवान आते हैं, तो 56 भोग क्यों बनाया उसने भगवान के लिए? हाँ, भक्ति था क्या? मतलब अरे कृष्णा आ रहे, मेरे को उसको बेस्ट खिलाना है, मैं चाहे तो आज उपवास कर लूँगा, लेकिन कृष्णा को नहीं। इट वॉज 56 भोग क्यों खिला रहे थे? क्योंकि हाँ, कृष्णा आएगा, डील, लेट अस स्ट्राइक अ डील, आप मेरे साथ आ जाओ, ऐसा था। बट कृष्णा नोज ना, कृष्णा किसके साथ रहते? अपने भक्त के साथ रहते। उन्होंने वो देखा भी नहीं 56 भोग को। तो जहाँ पे भक्ति नहीं, वहाँ पे कृष्णा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वृंदावन में डेली यशोदा माई 56 क्या इंटू 3 टाइम्स बनाते रहे भगवान के लिए। सो वी आर ऑल स्ट्राइकिंग डील्स विद आवर डेमीगॉड्स, जिनको हम भक्ति कहते हैं। बहुत लोग रहते हैं ना, आज सोमवार सबब मका, मेरे को जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ से, मतलब जाना चाहिए, नो डाउट, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अंदर से कि वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ? इज इट रियली भक्ति? क्या मुझे शिव जी से इतना प्रेम है? नहीं। वहाँ पुत्रम देई, जन्म देई, धनम देई, यही देई 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 करके हम लोग अपना। तो फिर यहाँ पे अभी देखो, ये जो श्रद्धा हम लोग बोलते हैं ना, फेथ, ये भी कौन देता है? यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा या अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विददादि हम। सो दिस इज कृष्णा। तो अभी कृष्णा देखता है, चलो मेरी तो भक्ति नहीं कर रहा है, इवन दो ही इज डूइंग सेल्फिशली भक्ति कर रहा है, लेकिन श्रद्धा चाहिए ना, तो वो श्रद्धा भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो दिस इज़ द मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्णा ऐसा नहीं सोचता मेरा भक्ति नहीं कर रहा है, रुक तुझे दिखाता हूँ, तो बोलता अच्छा इसका भक्ति करे, नो प्रॉब्लम। तो कृष्णा इज़ द रियल फादर। इससे पता चलता है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो एटलीस्ट मेरा नहीं कर रहा है, मेरा जो अंडर है, जिसको मैंने नियुक्त किया है पूरा मटेरियल वर्ल्ड चलाने के लिए, इसका भक्ति कर रहा है ना, तो उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। सो श्रद्धा इज़ द एक्चुअल वेल्थ, या फिर जो मनी है ना, अगर कुछ खरीदने जाना है पैसा चाहिए रहा है, तो उसी तरह भक्ति भी करने के लिए
जो पूंजी है दैट इज श्रद्धा। तो वो श्रद्धा भगवान ऐसा पॉकेट मनी की तरह हमारे जेब में डालते हैं। नहीं तो हम लोग किसी देवी देवता, बहुत सारे लोग रहते ना, कहीं पे नहीं जाते। सो बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्शिप एनीबडी, तो कृष्णा उनको भी छोड़ देते हैं। ओके, इनको किसी का भक्ति नहीं करना है, नास्तिक की तरह रहना, चलो नो प्रॉब्लम। सो वो जो श्रद्धा का जो भी पूंजी है विच वी रिक्वायर टू डू दिस डेमीगॉड वर्शिप, वो भी भगवान कृष्ण ही हमको देते हैं। अभी नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग ये डिस्कस करें। तो वो डांडिया जो हम खेलते हैं तो उसका दुर्गा माता को खुश करने के लिए या खुद खुश होने के लिए तो फिर दुर्गा माता भी अपना डंडा लेके खड़ी रहती है खेलो खेलो। तो वो पत्री प्रभु अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडा, सब कुछ हो जाएगा ठंडा जब यमराज मारेगा डंडा तो जो हम लोग डांडिया खेलते हैं, यमराज भी एक डंडा लेके खड़ा है ओके, सो आई एम इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल, एज सून एज वन डिजायर्स टू वर्शिप सम डेमीगॉड आई मेक हिज फेथ स्टेडी सो दैट ही कैन डिवोट हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर डेइटी। तो इवन जो हम ये देवी देवताओं को भक्ति कर रहे हैं ना, उसमें भी जो हमको श्रद्धा चाहिए वो भगवान ही हमको देते हैं। सो दैट इज द बेस्ट थिंग कृष्णा। सो देन अभी भगवान बता रहे स श्रद्धया युक्ता तस्याराधन हीयते। अभी देखो यहाँ पे भी कृष्णा का एवरीवेयर ना, कृष्णा इज द वन हु इज डूइंग। हम बोलते हैं ना वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हम लोग गए देवी देवता के पास, अभी मांगना शुरू किया, लिस्ट बताना शुरू किया। डज दे हैव द पावर, कंप्लीट पावर? देवी देवताओं के पास नहीं। अभी यहाँ पे बताते स तस्य श्रद्धया युक्ता तस्याराधन हीयते लभते च तथा कामान मयि एव हितान हितान। सो भगवान जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। सो जब हम देवी देवताओं के साथ मांगते हैं कि ये दो वो दो, व्हाट शी डज, वो बोलते हैं आप नेक्स्ट मंडे आओ, तब तक मैं आपका अप्रूवल लेके रखती हूँ। और वो फाइल कहाँ हो जाता है, वैकुंठ जाता है। तो endowed with such faith he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desire, but actually these benefits are bestowed by me alone। तो ऐसा नहीं कि देवी देवता हैव द वो फुल सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो व्हेन कृष्णा सेज ओके फाइल पास करो, देन ओनली द फाइल पासिस। देन अभी भगवान बोलते हैं इवन दो आपका फाइल पास हो गया, इसका प्रॉब्लम क्या है, अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम। जो भी आपको मिलेगा वो क्या है, इट इज़ टेम्प्ररी। आपका जॉब टेम्प्ररी है, आपका वेल्थ टेम्प्ररी है, आपका जो हेल्थ है वो भी टेम्प्ररी है। एंड अगर देखा जाए तो ये पूरा एग्जिस्टेंस अपना टेम्प्ररी है। सो क्या फ़ायदा, राइट? अभी जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उनका भी एज क्या है, ऑलमोस्ट 60 क्रॉस, आई मीन 50-60 तो रहेंगे वो। और एक जी के एक 20 साल ही विल लिव, फिर ख़त्म। उसका नेक्स्ट बॉडी में जब जाएंगे वो, ये पूरा जो है गया ना, अभी नेक्स्ट लाइफ में वो वापस वहीं पे बॉर्न होंगे, पता नहीं हमको। सो एवरीथिंग इज टेम्प्ररी, तो कुछ फ़ायदा नहीं। मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमीगॉड्स एंड द फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्प्ररी। दोज हु वर्शिप द डेमीगॉड्स go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet। देवान देव यजो यान्ति मद भक्त्या यान्ति माम अपि। अब ये डेमीगॉड्स भी गॉन है, डेमीगॉड्स आर नॉट इटर्नल, राइट? उनका भी एक पोस्ट है। तो अगर जैसे बोलते हैं ना आप ब्रह्म भुवना लोका, मतलब आप ब्रह्म प्लेनेट से लेके कोई भी प्लेनेट में अगर पहुंच भी गए, सत्यलोक या स्वर्ग लोक, हाँ, तो क्या होगा, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, आपको वापस इसी भौतिक जगत में आते रहना पड़ेगा। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बट वन हु कम टू मी, केवल उनको वापस ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी आगे भगवान कहते हैं, हाँ, और ये जो सारा हम लोग कर रहे हैं ना, अविधि पूर्वकम, कृष्णा स्वयं कहते हैं ऑल दिस दैट वी आर डूइंग इज अविधि पूर्वकम। ये विधि के अनुसार, मतलब अगर स्पिरिचुअल लाइफ के अनुसार नहीं है। सो जो हम जो ये सारा जो वर्शिप कर रहे हैं, इट इज़ अविधि पूर्वकम।
तो अभी देखते हैं कि दुर्गा माता को जब हम भगवान की भक्ति जब करते हैं तो उनको, आपको क्या लगता है, शी फील्स गुड और बैड व्हेन वी टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? हाँ, जो जितने भी हम माताएं हैं या प्रभु है जिन्होंने पहले बहुत भक्ति की है, मतलब माताओं, दुर्गा माता का, और अब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो आपको क्या लगता है दुर्गा माता आपको पनिश करेगी? हाँ, मुझे छोड़ के चले गए, हाँ, इतना मैंने तुमको संभाला, सब तुम्हारा इच्छाएं पूर्ति की, विल शी थिंक दैट वे? नहीं, शी एक्चुअली बिकम्स हैप्पी। जैसे आप माताएं और प्रभु, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के साइंटिस्ट बना, डॉक्टर बना, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, अभी मेरे से ज़्यादा पढ़ लिख के, हाँ, हाँ, मैं खाली 10th पास था और ये ग्रेजुएट हो गया है, PhD, ऐसा लगेगा आपको ना? आप सबको बोलेंगे मेरा बेटा पता है PhD है, मेरा बेटा डॉक्टर है, आप बोलते हैं ना गर्व से। तो उसी तरह दुर्गा माता को अच्छा लगता है, चलो एक मेरा बेटा सुधर गया और अभी भक्ति करने लग गया। सो ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर, भगवान की जो माला करते हैं ना, दुर्गा माता हमको देख के इतना प्रसन्न होती है। एंड हम जब ऐसे जब उनके टेम्पल में जाते हैं ना, कितना भी भीड़ क्यों ना हो टेम्पल में, वो सारे भीड़ में हमको देखती है, हाँ ये इसका मुझे इसको देखना है। क्योंकि बाकी सब लोग क्यों आए हैं? बड़ा आरती कर रहे हैं, करताल बजा रहे, नाच रहे, पालकी पकड़ के घूम रहे, लेकिन वो लोग क्यों? अपना सेल्फिश। लेकिन हम लोग क्यों गए अभी कि दुर्गा माता आपने हमको अभी रास्ता दिखाया है और हमारा रास्ता आप हेल्प करो। एंड तब वो जो अपना त्रिशूल का जो वार है, वो 3 ताप है, भक्तों के ऊपर नहीं चलाती, क्योंकि अब हम लोग भक्ति में आ गए। एंड भगवान भी उनको बोलता है अभी इसको छोड़ दो, ये सुधर गया है। सो दुर्गा माता एक्चुअली बिकम्स हैप्पी। तो बहुत लोगों को डर लगता है ना। एक बार हम लोग एक डोनेशन कलेक्ट करने गए थे ना, तो प्रभु जी उनको प्रीच कर रहे थे कि आप लोग कृष्ण भक्ति में आ गए ना, अभी ये आपको मतलब और देवी देवताओं का आप भक्ति नहीं करेंगे, मतलब उनको बोला नहीं मत करो, नहीं करेगा तो भी चले नहीं। वो बोले नहीं नहीं प्रभु, ये जो गणेश जी है ना मुझे को इतना पसंद है, अब गलती से भी कभी मत बोलना है कि गणेश जी की भक्ति। तो इतना उनको ये रहता है अटैचमेंट, राइट। वो बोलने लगी तो हमने बोला ऐसा थोड़ी है, आप करो, लेकिन गणेश जी से क्या मांगो? कौन से विघ्न हरने के लिए बोलो? जो हमारे भक्ति मार्ग में आ रहे, जैसे कि हम लोग भक्तों का अपराध करना या चैंटिंग के टाइम ऑफेंस, ऐसे जो विघ्न आ रहे उसको हरो। बाकी ये जो विघ्न है वो अच्छा है एक्चुअली। जितना हम लोग ठोकर खाते हैं ना इन मटेरियल वर्ल्ड, उतना हम भगवान के पास आते हैं। ओके, जब मैं भी नए भक्ति में आया तो यही इच्छा थी, भगवान जॉब अच्छा चले, सब अच्छा हो, ये हो। लेकिन भक्तों के संग में आके जब भक्तों को देखा, पता चला कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। हाँ, कृष्ण प्रेम। तो हमारे और अन्य लोगों के में क्या डिफरेंस है? पीपल चैंट हरे कृष्णा ताकि या तो भुक्ति या मुक्ति, मतलब मटेरियल लाइफ अच्छा हो, या फिर मटेरियल लाइफ में पता चला यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं, फिर लिबरेशन के लिए। तो हम लोग ना भुक्ति चाहते ना मुक्ति चाहते, हम लोग क्या चाहते हैं? कृष्ण प्रेम। दैट्स द रीज़न वी चैंट। हमारा चैंटिंग का उद्देश्य और कुछ नहीं है, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। चाहे तो यहाँ पे रखो या फिर पाताल में फेंको, कहीं पे भी फेंक दो, लेकिन हमेशा आपका स्मरण हो, आपके भक्तों का संग मिले एंड आपकी भक्ति में आनंद मिले, राइट। अदरवाइज वी हैव नो अदर। हम कहीं पे भी आप रखो, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि, लाइफ आफ्टर लाइफ। मतलब जब हम जन्मनि मतलब क्या? नो लिबरेशन। जो लिबरेट होता है उसको जन्म नहीं मिलता ना। लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं? आपके भक्ति में अगर बार बार जन्म लेना पड़े तो भी चलेगा। भवतात भक्ति, एक अहितु की भक्ति करने का हमको मौका मिले, क्योंकि जहाँ पे भक्त रहते हैं वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो व्हेन वी बिकम डिवोटीज एंड अपना जब पूरी तरह से भगवान में हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो यही वृंदावन हो जाता है, यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। तो उस तरह से तो हम लोगों का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्ति। अभी हम एक इंसिडेंट देखते हैं, लाइक हाउ दुर्गा माता लव्स डिवोटीज। तो जड़ भरत, सबको पता है कौन है जड़ भरत? तो भरत महाराज जो थे ना, वो बहुत ही, मतलब ये जो पृथ्वी का पूरा नाम है भरत, भरतवर्ष, उनके ऊपर ही रखा गया है। तो इतने बड़े भक्त थे वो, बहुत बड़े राजा। लेकिन जैसे ही उनका टाइम आया, उन्होंने क्या किया? सब कुछ, अपना पूरा राज्य सब अपने बेटे को सौंप दिया और वो चले गए जंगल। ऐसा कहते हैं, जो गंडकी नदी है ना नेपाल में, तो वहाँ पे चले गए वो और वहाँ पे भक्ति करने लगे। और वो कौन से स्टेज पे थे? भावा स्टेज पे थे वो। जैसे आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर निष्ठा, रुचि, फिर निष्ठा, एंड लास्ट क्या है? भाव एंड देन प्रेम। केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बाकी था।
सो ही वॉज एट द स्टेज ऑफ भावा भक्ति, भरत महाराज। लेकिन क्या हुआ, सब छोड़ के आए, हो टोटल अनासक्त होके आए। लेकिन वहाँ पे एक दिन क्या हुआ, जब वो गंडकी नदी में अपना दिनचर्या कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक हिरण आता है, हिरण, और वो गर्भवती थी हिरण। और तभी वो हिरण को देख के शेर आता है। वो शेर को देख के क्या होती है, हिरण जन्म देती है छोटे हिरण को, और वो मर जाती है। और वो और क्या होता है, वो जो छोटा हिरण रहता है उसको भरत महाराज ले लेते हैं। तो अभी क्या सोचता है वो, अरे इसकी माँ तो मर गई, अब इसको कौन देखेगा, और वो उसका पालन पोषण करना शुरू करता है। और अभी जो व्यक्ति भावा स्टेज पे था, वो हिरण के प्रति इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है, वो पूरा भक्ति भूल के पूरा तरह से हिरण क्या कर रहा है, उसको पालना है, उसको खाना खिलाना है। हाँ, और कभी कभी हिरण जब बाहर जाता ना, वो पूरा दिन चिंतित रहता, वो वापस आएगा ना, उसको किसी ने खाया तो नहीं ना। तो इस तरह से वो पूरी तरह से हिरण में आसक्त हो जाता है। और जब वो अपना ध्येय छोड़ते हैं भरत महाराज, वो किसके बारे में चिंतन करते हैं, हिरण के बारे में चिंतन करते हैं। और अगला जन्म क्या मिलता है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या यम यम वापि स्मरण भावम। सो व्हेन वी लीव द बॉडी, जो हमको याद आएगा, हमको वो शरीर मिलेगा। ये दुर्गा माता जो पूरा 84 लैक्स जो शरीर है, उसमें से वो शरीर हमको मिलेगा। तो जड़ भरत महाराज क्या बने, जड़ भरत बने। तो अगला उनका जन्म था हिरण बने। तो लेकिन क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर के भक्त थे, भगवान ने उनको अपने पिछले जन्म का सब याद दिलाया। हिरण के शरीर में उनको सब याद था, मैं भरत महाराज था, मैंने सब छोड़ा भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन ये हिरण के चक्कर में भक्ति भूल गया। तो सोचिए, हम लोग अभी भक्ति कर रहे ना, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। जो भावा भक्ति के स्टेज में थे वो सब भूल गए। तो हम सोचिए हमको कितनी दृढ़ता और एकदम संभाल के भक्ति करनी चाहिए। 24 आवर्स मिलकर 24 आवर्स अगर हम भगवान का स्मरण कर सकते ना, इट इज़ बेस्ट। हाँ, कभी ऐसा मत सोचे आज मैंने 2 माला कर ली, 2 घंटे माला कर लिए, 16 और मैंने भागवतम पढ़ लिया तो अच्छी भक्ति की है। अभी पूरा दिन मैं अगर भगवान के बारे में नहीं सोचूंगा तो भी मेरा फॉल डाउन नहीं होगा, या फिर आई विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा कभी मत सोचिए। हाँ, इट इज़ वेरी, इसके वजह से ना जब भी अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमको भगवान के बारे में ना सोचे बिताना नहीं चाहिए। भरत महाराज जैसे उनका अगर फॉल डाउन हो सकता है तो हम लोगों का क्या है, हम तो अभी मैं इधर बैठा हूँ कुछ बोल रहा हूँ लेकिन भी पता नहीं दिमाग, तो उस तरह से तो हम लोगों का कभी भी। तो फिर उनको सब याद था। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो मैंने गलती किया है ना, वो भगवान से उन्होंने बोला मुझे प्लीज़ और एक चांस दे देना, मैं ये वापस गलती नहीं करूँगा। तो इमीडिएटली हिरण का जब जन्म खत्म हुआ, उनको अगला शरीर मनुष्य का मिला। लेकिन इस बार वो ना एकदम जड़ मतलब क्या है ना, मतलब उनको सब पता था लेकिन वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे उनको कुछ भी नहीं आता। डम बोलते ना, हाँ, जड़ मतलब उनको कुछ भी उनको ना खाने के लिए ना ऐसा बासी खाना दिया जाता था, वो आराम से उसको खाते थे बिना कंप्लेन किए। मतलब इस बार उन्होंने सोचा था मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड के चक्कर में पड़ना ही नहीं, आई डोंट वांट टू जस्ट गेट इंटेंगल्ड। तो वो बासी खाना खाते थे। उनको सोने के लिए मतलब इवन ठंड में बोलते थे तुम बाहर सो जाओ, क्योंकि उनके जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी से उनको 8 पुत्र थे और एक पत्नी से 2, तो उनको ही वो लोग संभालते थे। और एक क्योंकि जड़ की तरह बिहेव करते थे, उनको लगता था ये तो मतलब कोई काम का आदमी नहीं है, तो उनको ऐसे जैसे जानवर को पालते हैं ना, ऐसे उनको पाला जाता था। जो भी घर में बचा कुचा है, सड़ा हुआ है, वो उनको खाने देते थे। तो इस तरह से उनका चल रहा था। लेकिन ही वॉज नॉट इफेक्टेड, वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। तो एक दिन उनके पिता ने क्या किया, उनका जो खेत था ना, खेत की रखवाली करने के लिए उनको बोला अब तुम जाओ खेत की रखवाली करो। तो तब खेत की रखवाली जब कर रहे थे तो कुछ ये जो डाकू होते ना, तो वो लोग ना काली के बहुत बड़े उपासक होते। तो वो लोग क्या करते, नर बलि चढ़ाते। क्या चढ़ाते? नर बलि। तो उनको लगता है कि नर बलि चढ़ाने से काली खुश हो जाएगी और हमको जो चाहिए मिलेगा। तो एक दिन उनका क्या हुआ, नर बलि चढ़ाने के लिए जो उन्होंने पकड़ा था एक आदमी को, उसका जो फिंगर था ना वो कट था उंगली में। तो क्या होता है, बलि जब चढ़ानी होती है तब वो पूरा जो व्यक्ति ना पूरा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक थोड़ा सा भी खरोच अगर है ना तो वो नर बलि
एक्सेप्ट नहीं होगा। तो डाकू को बोला, वो अपने लोगों को बोला जाओ एक अच्छा स्वस्थ आदमी को ढूंढ के लाओ। तो वो लोग ढूंढ रहे थे, रात में टाइम कहाँ मिलेगा सोच रहे, ढूंढ रहे, फिर करते करते खेत के पास पहुंचे जहाँ पे जड़ भरत खेत की रखवाली कर रहा था। एंड जड़ भरत तो मतलब वो ऐसा था, मतलब ही यूज्ड टू एक्चुअली एक्ट लाइक डम। तो जैसे उसको पकड़ा, बोला हाँ एक अच्छा आदमी मिल गया। तो बोला कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोला आपका नर बलि चढ़ाना है। तो वो बोला लेके जाओ उसको, बिल्कुल ही वॉज लाइक दैट। तो उसको लेके जाते हैं तो डाकू भी खुश होता है, अच्छा हट्टा खट्टा तुमने एक अच्छा नर लाया, हमारी काली माता बहुत खुश हो जाएगी। और वो लोग उसको जड़ भरत को काली माता के सामने रखते हैं। ओके, एंड अभी जैसे ही वो उसका वध करने जाते हैं ना, काली माता को गुस्सा आता है, लाइक जड़ भरत मेरे, अभी काली माता का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो बोले मेरे स्वामी के शुद्ध भक्त को तुम बलि चढ़ाओगे? तो शी एक्चुअली मैनिफेस्ट, वो जो काली माता मैनिफेस्ट होती है, वो जो तलवार से वो काटने वाले थे उसका सर वही लेके, और अपने जो भी त्रिशूल ये सब थे ना लेके, जितने भी वहाँ पे डाकू थे उनका सब वध कर देती है एंड उनको मार देती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि दुर्गा माता भी जो है अपने भगवान के जो वैष्णव है उनको कितना वो सम्मान देती है। तो इस तरह से जड़ भरत का जो है जीवन, आई मीन लाइफ, दुर्गा माता स्वयं बचाती है। और ये नर बलि वगैरह प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज़ एक्चुअली अविधि, मतलब दुर्गा माता को नहीं चाहिए। एक्चुअली हमें मांस खाना होता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक गौ माता का वगैरह, एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं जो पहले जो होता था जो यज्ञ में जो गौ माता को वगैरह बलि देते थे, इट यूज्ड टू बी एकदम बहुत ही वृद्ध जो हो चुके हैं, अभी कभी भी प्राण छोड़ सकते हैं, ऐसे पशु का यज्ञ में आहुति देते थे। और क्या होता था, तुरंत जैसे ही उसको आहुति दिया तुरंत वो लोग नया शरीर धारण करके बाहर आते थे। ऐसा था, ऐसा नहीं कि आपको मांस खाना है तो आप जाते हैं, मतलब आजकल इवन वो मुर्गा ना, हैन, ऐसे इन लोगों को इनका भी मांस चढ़ाते हैं थोड़े लोग और फिर उसी को भक्षण करते हैं इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस। एक्चुअली क्या होते हैं, पीपल जस्ट सेटिस्फाई देयर टंग्स, तो इसको यज्ञ हम नहीं बोल सकते। तो इस तरह से जड़ भरत का जो है दुर्गा माता, वो जो काली देवी, काली माता उसका ये करते हैं और उन्हीं को सब मार देती है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो दुर्गा माता है वैष्णवों का, मतलब शी वॉन्ट्स टू, मतलब वो खुद वैष्णव है, तो जब देखती है कि शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको कभी भी उनका कभी भी वो आप जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उनको बहुत प्रिय होता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि अगर मैंने माता का भक्ति छोड़ के केवल मैं हरे कृष्णा करूँगी तो मेरा कुछ होगा क्या। तो क्योंकि क्या होता है, भक्ति में जब हम आते हैं ना, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, एंड प्यूरिफिकेशन मीन्स व्हाट, हमारा पहले के जो कर्म है जो हमको धीरे धीरे मिलने वाले थे ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम, तो भगवान क्या बोलते हैं, हाँ अभी इसको यही जन्म, अगर यही जन्म में मुझे भगवत धाम लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी पूर्व कर्म है, पाप कर्म है, इसको हिसाब करना पड़ेगा ना। तो भगवान क्या करते हैं, वो अपना डेटाबेस से पूरा, हमने इतने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में जो जो पाप कर्म किए उसका पूरा डेटा लेते हैं, फिर उसको डिस्काउंट देते हैं, सब कर करके वो क्या करते हैं, यही लाइफ टाइम में उसको ख़त्म करना है ना। तो भक्ति में आने के बाद कभी कभी हम देखते हैं कि जीवन में उतल पुतल होती है, तो हमको लगता है अरे भक्ति में आने के पहले सब अच्छा चल रहा था, अचानक मैंने भक्ति स्टार्ट की एंड माला करना शुरू किया, घर में प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ऑपरेशन के लिए, व्हाट इट इज़, ऑपरेशन मतलब क्या है, आपको डॉक्टर स्वस्थ करना चाहता है, तो स्वस्थ करने के लिए थोड़ा तो इलाज करना पड़ेगा। तो उस तरह से तो हमेशा याद रखिए, जब भक्ति में आते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका मतलब काम चालू हो गया है, मतलब भगवान ने आपका फाइल हाथ में लेके आपका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट किया है। तो ऐसा मत सोचिए हाँ दुर्गा माता हाँ गुस्सा हो गई है, मैंने वहाँ पे जाना बंद किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे भी जाएंगे और सोमवार को उधर भी जाएंगे, मंगलवार को इधर भी जाएंगे, दुर्गा माता गुस्सा मत हो ना, मैं आपके पास भी आने वाला हूँ। तो देन शी लाफ्स, वो बोलते हैं अरे ऐसा है ही नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, अभी भगवान ने तुम्हारा जो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट किया है। तो भक्तों को हमेशा ये याद रखिए, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपके भक्ति में, मीन्स वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड।
इसलिए महाराज कहते हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, वन हु ट्राइज टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इज ट्राइंग टू अवॉइड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो पवित्र होने का जो हमारा प्रोसेस है उसको हम स्थगित करना चाहते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट वे। और अभी ये जो पूरा दुर्गा माता है, डज शी एक्ट इंडिपेंडेंटली? नहीं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सारा जो कार्य दुर्गा देवी कर रही है, इवन भगवत गीता में कहते हैं ना, मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में दुर्गा माता काम कर रही है। शी इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू कृष्णा। वो कृष्णा के सामने हाथ जोड़ के पूछती है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, मैं करूँ क्या? लॉर्ड बोलते हैं हाँ ठीक है करो। तो शी डजंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो वो शी इज़ लाइक अ शेडो ऑफ द लॉर्ड। तो अगर आप देखेंगे मेरा हाथ यहाँ पे जो अगर शेडो जो आता है वो व्हाट इज एक्चुअली शेडो? जब मैं हाथ हिलाता हूँ तब शेडो हिलता है, राइट? अगर ऐसा है तो शेडो मेरा हाथ हिलेगा क्या? नहीं। तो उसी तरह से दुर्गा माता इज द शेडो ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान जैसे उनसे कार्य कराते हैं वो कार्य करते हैं। तो देखिए मतलब वो भी भगवान का ही मानती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द एक्सटर्नल पोटेंसी माया हु इज ऑफ द नेचर ऑफ द शेडो ऑफ द चित पोटेंसी इज वर्शिप्ड बाय ऑल पीपल एज दुर्गा, द क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंसी ऑफ दिस मुंडेन वर्ल्ड। आई ऑर्डर द प्रीमियर लॉर्ड गोविंदा इन अकॉर्डेंस विद हुज विल दुर्गा कंडक्ट्स। So according to the will of the Lord, she conducts herself. So this is the position of Durga Mata. मया दक्षिण प्रकृति सूयते सराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। तो इस बार जब हम दुर्गा पूजा करेंगे या हम जब डांडिया खेलेंगे तो ये सब तत्व को जान के ही, सी देयर इज नो हार्म इन वर्शिपिंग, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, मेरे भक्तों का जो पूजा करता है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो जब हम दुर्गा माता का जब भक्ति कर भी रहे हैं तो हमेशा ये तत्व हमको याद रखना है, उनसे केवल और केवल क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है। एंड शी ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। और उनसे प्रार्थना करना है कि ये जो हम प्रिजन हाउस में फंसे हुए हैं इससे निकलने का हमको मदद कीजिए। हाँ, वेरी डिफिकल्ट बोलते हैं ना, अर्जुन क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान खुद बोलते हैं, देवी एश गुणमयी मम माया दुरत्यया, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे। सो एक अच्छा उदाहरण एक प्रभु जी दे रहे थे। तो आप किसी के घर जाते हो, ओके, और उस घर में कुत्ता है। वो कुत्ता जैसे आपको देखता है एकदम शेर की तरह, राइट? शेर बोलेगा, मेरा कंपैरिजन ऐसा कर रहे हो, तो वो भौंकने लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि अभी मुझे खा ही जाएगा। तब अचानक वहाँ से मालिक बोलता है टॉमी टॉमी, तो फिर वो कुत्ता के एकदम अपना मुंडी ऐसा नीचे करता है और चुपचाप पीछे चला जाता है। तो उसी तरह से दुर्गा माता, मतलब दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, द मोमेंट लॉर्ड से छोड़ दो इसको, तो दुर्गा माता भी क्या करते हैं? हमको छोड़ के आती है। तो केवल और केवल भगवान का जब हम शरण लेंगे तो ये तीन ताप, ये भौतिक जगत का आकर्षण, ये सब हमारे इसमें से चला जाएगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। और उसको वो आकर्षण चला जाने के लिए और भगवान के प्रति आकर्षण आने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको सबसे आसान तरीका दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का शुद्ध नाम का उच्चारण। ओके, अदरवाइज और कोई प्रोसेस नहीं है इस कलयुग में। इस कलयुग में अगर हमको इस भौतिक जगत के आकर्षणों से छुटकारा पाना चाहते हैं और भगवान के चरण कमलों में हमको एकदम आसक्ति और आश्रय चाहिए, लेना चाहते हैं, और अनन्य भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई इच्छा नहीं है। हेल्थ का इशू, धन का इशू, परिवार का इशू, जो भी इशू है, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे वो आते रहेगा। तो उसके प्रति हमको दुर्लक्ष्य करके केवल और केवल भगवान के भक्ति के प्रति आसक्त होना है। तो एक प्रभु जी ने कहा था, ये सारे जो कैंसर, फीवर, प्लेग, कोरोना, दिस इज नॉट द डिजीज, द रियल डिजीज इज दिस मटेरियल बॉडी। ये जब भौतिक शरीर है ये एक्चुअल डिजीज़ है। तो जब तक ये है, ये बाकी सारे सिम्टम्स हमको शो करते रहेंगे, बुखार आना, कैंसर आना, हार्ट अटैक, ये सारा सिम्टम्स है इस डिजीज्ड बॉडी का।
तो जब हम अपना इस बॉडी को स्पिरिचुअलाइज करेंगे वही एकमात्र सोल्यूशन है। तो लेट अस प्रे टू दुर्गा माता। ओके, शी इज़ वेरी वेरी, मतलब माता है वो हमारी। वो हमको रास्ता दिखाना चाहती है और दिखाएगी भी, ओनली इफ़ वी प्रे टू हर एंड शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो ये जब दुर्गा अष्टमी जब आएगी, जब पूजा आएगा, तो सब लोग दुर्गा माता से प्रे करेंगे कि हमको अभी ये अवसर मिला है प्रभुपाद के शरण आने का, चैतन्य महाप्रभु के शरण आने का, इस कलयुग में हरि नाम करने का हमको अवसर मिला है। तो इसमें आगे बढ़ने की, रुचि आने की और भक्तों का सेवा करने का, और भगवत जाने का जो इच्छा है वो और प्रगाढ़ हो। ओके, शिला प्रभुपाद ने हमको इतना अच्छा अवसर दिया है, तो दुर्गा माता भी उसमें हमको मदद कर सकती है, ओनली हमको मांगना है। तो अगर हम उनसे प्रे करेंगे, शी विल गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ऑल दिस मटेरियल थिंग, वो तो मतलब मिलेगा भी नहीं। तो और अभी हम क्योंकि भक्ति में आए, तो वो भगवान ने भी बोला है उनको, इनको देना मत इन्होंने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, तो दुर्गा माता को बोलते हैं उनको देना मत। तो सो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही शांत, बिना सोए कथा का श्रवण किया और मुझे सेवा का अवसर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी प्रसाद रेडी है प्रभु, डन ना? थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, दुर्गा माता की जय, नवरात्रि महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।